Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning. I am Dr. Farah, and on behalf of PGMI, I welcome you all to this webinar. I hope everybody is doing well and ready to apply for the induction session July 2024. I hope I'm clearly audible to everyone. If yes, a few can please raise your hand so that we can proceed. Okay, thank you. This webinar will guide you how to apply and how to fill the online application form for the session July 2024 for the session for first fellowship and second fellowship both. Therefore, without wasting any time, we will first move to the induction policy. आ रही है ना सर? आपकी स्क्रीन पे इंडक्शन पॉलिसी नजर आ रही है. आई विल क्विकली गो थ्रू ओनली द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस पॉलिसी. लेटर ऑन यू कैन रीड द पॉलिसी इन डिटेल. इट विल बी अवेलेबल ऑन PGMI ऑफिशियल वेबसाइट shortly. So there is a concept of uninhabited specialities. Specialities that are less populated, in which the number of trees are less as compared to the demand of public and community. इनकी जो list है, first fellowship and second fellowship both is given. You can read it in detail later on. The privilege given to the applicants who apply in these specialties is that PGMI allows NOC-based induction in these specialties in a way that slots available in PGMI affiliated hospitals shall not remain vacant. जो इंडक्शन है स्पेशलिटीज में उसका जो क्राइटेरिया है वो नेक्स्ट पेज में मेंशन है. यू कैन रीड इट and provision of NOC is not a confirmation of induction, and NOCs will be accepted for induction as per merit. अब जो नई चीज आई है जो कि लास्ट ईयर जो है इंडक्शन पॉलिसी में नहीं थी और ये अभी इस दफा और वो ये है कि स्पेशलिटीज बाय एनी इंस्टीट्यूट विद इन KPK विल नॉट बी एक्सेप्टेड. आप आउटसाइड KPK से इन स्पेशलिटीज में लेके आएंगे दैट विल बी एक्सेप्टेबल बट नॉट within KPK. Another new thing introduced in the induction policy is reserve slots. As decided by Executive Council of PGMI, the following specialties have reserved slots, and applicants who apply in these specialties will be offered induction on priority basis. Policy on NOC-based induction in these specialties shall remain the same as mentioned for uninhabited specialties. मतलब जो लोग इन स्पेशलिटीज में अप्लाई करेंगे जो नीचे बुलेट्स में मेंशन हैं उनको इंडक्शन जो है प्रायोरिटी बेसिस पे दी जाएगी. फर्स्ट फेलोशिप में हमारे पास रेडियोथेरेपी, फिजिया, ENT, आई, साइकेट्री, बायोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजी, पेरियोडोंटोलॉजी. इसी तरह स्पेशलिटी में भी हमारे पास स्पेशलिटीज मेंशन है और सेकंड फेलोशिप में भी मेंशन है. यू कैन रीड द डिटेल्स लेटर ऑन. Coming on to the eligibility criteria, only KP domicile holders are eligible for open merit seats, including the disabled persons and minority quota. ये जो दो कोटा हैं disabled persons वाले और minority वाले, they are by default included in open merit. नॉन KP domicile holders के लिए भी हमारे पास सीट्स हैं जैसे कि आर्म फोर्सेज एंड सिविल सर्वेंट स्पाउस कोटा. आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल हैं या सिविल सर्वेंट्स जो कि KP में ऑन स्टेट ड्यूटी हैं उनकी स्पाउसेस के लिए भी कोटा है. इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी कोटा है, प्रोवाइडेड दे आर स्पॉन्सर्ड बाय देयर रेलेवेंट गवर्नमेंट्स. Next is those who have passed FCPS 1 before 30th April and appeared in PGMI entrance test to be held on 26th May for the session July 2024 will be eligible. जो लोग exemption letter वाले हैं उनका जो exemption letter है it must be issued by CPSP on or before the closing date. Closing date is 13th May. आप लोगों ने advertisement में देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो advertisement को दोबारा भी read कर लें. For second fellowship, those applicants will be eligible whose FCPS 2 results have been announced on or before the closing dates. Congratulation letter, election letter या email जो आती है CPSP की तरफ से उसको आपने online form में attach करना है.
एडमिशन प्रोसेसिंग फी इज ₹5,000 एंड इट्स नॉन रिफंडेबल, और इसकी फैसिलिटी हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अवेलेबल है। अभी हम थोड़ी देर में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए भी सीट्स हैं और इनका अपना क्राइटेरिया है। तो जो लोग इन पे अप्लाई करना चाहते हैं दे शुड रीड द इंडक्शन पॉलिसी, एंड अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो दे कैन विजिट पीजीआर सेक्शन ऑफ पीजीएमआई, और हमारी जो टीम है दे विल बी अवेलेबल टू फैसिलिटेट देम। डोमिसाइल पॉलिसी है, इसमें काफ़ी लोग गलतियां करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एवरीबडी हेयर्स इट केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं अपॉन मैरिज शेल एज्यूम द डोमिसाइल ऑफ हर हस्बैंड, मीनिंग दैट आफ्टर मैरिज डोमिसाइल ऑफ हस्बैंड विल बी कंसिडर्ड एज डोमिसाइल ऑफ द फीमेल कैंडिडेट। इसका मतलब ये है कि व्हेन अ फीमेल गेट्स मैरिड, उसका अपना डोमिसाइल जो होता है वो नॉन वैलिड हो जाता है और उसके हस्बैंड का डोमिसाइल ही उसका डोमिसाइल कंसिडर किया जाता है। इसकी एग्जांपल ये है कि इफ देयर इज अ केपी डोमिसाइल होल्डर एंड शी गेट्स मैरिड टू अ नॉन केपी डोमिसाइल होल्डर, फॉर एग्जांपल पंजाब डोमिसाइल होल्डर, then she is not eligible for this induction. But vice versa, if the female is having a Punjab domicile and she gets married to a KP domicile holder, then she is eligible for this induction. Next point is permanent address on CNIC of the applicants must be that of KP. And in case of married female, the permanent address on CNIC of husband must be that of KP. जो मैरिड फीमेल के लिए जो कंडीशन डोमिसाइल के लिए है वही कंडीशन उनके परमानेंट एड्रेस ऑन सीएनआईसी के लिए भी है। मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रूव देयर मैरिटल स्टेटस विद अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय नादरा, या तो कोई सीएनआईसी हो जिसपे हस्बैंड का नेम मेंशन हो, या फिर कंप्यूटराइज निकाहनामा हो जो कि उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करना होगा। Then we have got reserved seats for different quota. The quota is only for first fellowship. There is no quota for second fellowship. ये मैं बता भी चुकी हूँ, डिसेबल पर्सन का है और माइनॉरिटी का कोटा है जो कि केपी डोमिसाइल होल्डर्स के लिए है। फिर नॉन केपी डोमिसाइल होल्डर्स के लिए हमारे पास आर्म फोर्सेस है और सिविल सर्वेंट स्पाउस कोटा है। पॉलिसी फॉर फॉरेन नेशनल्स, ये जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसको अच्छी तरह रीड कर लें। देन कम्स द क्राइटेरिया फॉर अवार्ड ऑफ मेरिट मार्क्स। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है वो 3 चीज़ों से बनती है। पेरिफेरी या हार्ड एरिया का जो एक्सपीरियंस है उसका वेटेज 5% है। एमबीबीएस या बीटीएस का जो वेटेज है दैट इज 20%, और पीजीएमआई का एंट्रेंस टेस्ट जो है दैट इज 75%। जो पेरिफेरी के जो लोग हैंड्स रेस कर रहे हैं, प्लीज बी पेशेंट, आपके क्वेश्चन आंसर सेशन बाय द एंड ऑफ दिस सेशन लिए जाएंगे। लेट मी कंप्लीट ऑल दिस, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन एंड में होगा। जो हार्ड एरिया के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि एज पर दी हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर जो कि यहाँ दिया हुआ भी है, जो मैक्सिमम काउंटेबल एक्सपीरियंस है दैट इज ओनली ऑफ 2 years। अगर आपकी सर्विस किसी पर्टिकुलर एरिया में 10 years भी है तो मार्क्स आपको सिर्फ 2 years के ही मिलेंगे। जो सर्टिफिकेट आप लोग हमें प्रोवाइड करेंगे इट मस्ट बी इशूड बाय DGHS-KP, एंड एनी सर्टिफिकेट इशूड बाय MS, DMS या DHO विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसमें वो लोग जिन्होंने पंजाब के किसी हार्ड एरिया में काम किया है या किसी एनजीओ में काम किया है या फिर किसी आर्मी के एरिया में काम किया है उनको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ओनली द सर्टिफिकेट इशूड बाय DGHS-KP विल बी एक्सेप्टेबल। अगर आपका एक्सपीरियंस लेस देन 12 months है तो वो नहीं काउंट होगा। अगर 12 months टू लेस देन 18 months है तो 1 year काउंट होगा, और अगर 18 months है तो वो 2 year काउंट होगा। द कैंडिडेट, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि these marks will be given to those medical officers who are exclusive servants of provincial government of KP, and those who are working in hospitals managed by public-private partnership will not be awarded these marks. Next we have got professional marks की कैलकुलेशन का तरीका है। बहुत से लोग कैलकुलेटर्स वगैरह यूज करते हैं, सो इट इज़ बेटर कि आप इसको खुद करें। इट्स वेरी इजी। आपके जो हर प्रोफेशनल एग्जाम्स के जितने भी आपके मार्क्स आते हैं उसको आप डिवाइड कर लें टोटल मार्क्स से, मल्टीप्लाई कर लें 100, यानी कि आपने एवरेज निकालनी है फॉर ईच प्रॉफ। फिर आपने सारी एवरेजेस को ऐड कर देना है, सम ऑफ ऑल परसेंटेजेस ऑफ ऑल प्रॉफ्स, डिवाइड करना है बाय 4 और 5 एज ए नंबर ऑफ प्रॉफ्स में भी। जो भी आंसर आएगा उसका 20% वेटेज यूज होगा आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट की कैलकुलेशन में। देन वी हैव गॉट फॉर्मेट ऑफ पीजीएमआई एंट्रेंस टेस्ट। हमारे पास 3 टेस्ट कैटेगरीज हैं, मेडिकल स्पेशलिटीज, सर्जिकल स्पेशलिटीज एंड डेंटल। अभी हम जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो जब आप पार्ट 1 एंटर करेंगे तो आपका टेस्ट कैटेगरी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, बट स्टिल यू नीड टू बी विजिलेंट कि आपकी टेस्ट कैटेगरी आपके पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली हो, और अगर उसमें कोई मसला आता है तो यू शुड कॉन्टैक्ट अस।
जो टेस्ट है उसमें बेसिक का वेटेज 20% है, जनरल का वेटेज 50% है, और बाकियों का वेटेज मेंशन्ड है। डेंटल कैटेगरी का अपना वेटेज है, जो लोग इसमें अप्लाई करेंगे वो लोग इसको रीड कर लें। फॉर सेकेंड फेलोशिप है, उसमें जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है वो तीन चीज़ों से बनती है। एमबीबीएस का जो वेटेज है दैट इज 50%, एक्सपीरियंस जो है पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस उसका 20% वेटेज है, और पब्लिकेशन का 30% वेटेज है। इस दफ़ा एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने जो क्राइटेरिया है फॉर अवार्ड ऑफ एक्सपीरियंस इन पब्लिकेशन मार्क्स वो चेंज कर दिया है। अगर आपकी कोई भी पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस है, अगर आपकी वो फर्स्ट फेलोशिप में भी है, सपोज एक एप्लीकेंट है वो कार्डियोलॉजी में उसने फर्स्ट फेलोशिप की भी है एंड ही वांट्स टू ऑप्ट फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एज सेकंड फेलोशिप, अगर उनका एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजी में है या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में है, उनके मार्क्स जो हैं वो एक इक्वल होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 20 होंगे। अगर उनका एक्सपीरियंस लेस देन 6 मंथ्स है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर 6 मंथ्स टू लेस देन 12 मंथ्स है तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे। 12 मंथ्स टू लेस देन 18 मंथ्स है तो 10 मार्क्स हैं। और अगर 18 मंथ्स टू लेस देन 24 मंथ्स है तो 15 मार्क्स हैं, और 24 मंथ्स और मोर हैं तो 20 मार्क्स हैं। इसमें बात इंपॉर्टेंट है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय द एचआर डिपार्टमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड इट मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय द एचओडी एंड एसोसिएट डीन। इसी तरह जो पब्लिकेशन का वो है, द आर्टिकल्स मस्ट बी पब्लिश्ड इन एचईसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें एचजीआरएस के एक लिंक दिया गया होगा, जो हायर एजुकेशन कमीशन की जर्नल रिकॉग्निशन सिस्टम है। उसमें अगर आपका वो है जर्नल सर्चेबल है तो उसी के मार्क्स दिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं दिए जाएंगे। अगर आपका आर्टिकल आपकी कार्डियोलॉजी से रिलेटेड है या इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी से रिलेटेड है, मार्क्स उसके 4 होंगे फॉर वन पब्लिकेशन, और मैक्सिमम मार्क्स उसके 20 होंगे। Next, very important thing is the candidates who are enrolled in FCPS with PGMI Peshawar before January 2024 session. They are eligible to apply for this session only if they have resigned and notification of accepted resignations has been issued before the closing date, that is 13th May. इसमें बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है एंड दे कैन अप्लाई। दिस इज नॉट लाइक दैट। अगर आपने रिजाइन अपना पुट फॉरवर्ड किया है, यू मस्ट फॉलो एंड यू शुड बी हैविंग एन कॉपी ऑफ एक्सेप्टेड रेजिग्नेशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और आपने उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करना है, और इट मस्ट बी नोटिफाइड बिफोर द क्लोजिंग डेट। नेक्स्ट है, जो हमारे पास इनरोल हुए हैं पीजीएमआई पेशावर के साथ इन जनवरी 2024, यानी कि जो लास्ट सेशन था, trainees who got a seat allocated in final slot allocation or in subsequent placement orders, their names included in any placement order for FCPS, MCPS, diploma session January 2024 are not eligible for this session. It is very loud and clear. अगर आपने चाहे अराइवल दिया है, चाहे नहीं दिया, चाहे उसी वक्त रिजाइन कर दिया है, चाहे बाद में रिजाइन कर दिया है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस सेशन। जो लोग हमारे पास एमसीपीएस और डिप्लोमा में इनरोल्ड हैं, यस दे कैन आल्सो अप्लाई। अगर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, सपोज डिप्लोमा एनेस्थीसिया का 2 साल का कोर्स था, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, दे कैन आल्सो अप्लाई। अगर उन्होंने एग्जिट एग्जाम पास कर लिया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट 2 में अगर आप देखें, अगर ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है लेकिन अभी भी एग्जिट एग्जाम पास नहीं किया, दे कैन आल्सो अप्लाई, सपोज डिप्लोमा वाले। तो लेकिन उनकी स्टाइपेंड उसी वक्त से स्टार्ट होगी द डे दे पास देयर एग्जिट एग्जाम। इसी तरह जो हमारे पास लोग हैं एमसीपीएस में इनरोल्ड हैं, तो जो सीपीएसपी की नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक FCPS and MCPS trainees in all disciplines are not allowed to join both the programs simultaneously. अगर कोई MCPS का ट्रेनी है and he wants to join FCPS prior to passing the MCPS examination will have to cancel the RTMC of MCPS. और जब वो MCPS की RTMC कैंसिल करेंगे then they have to refund the all the stipend received for the training period. इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट कुछ ट्रेनिंग रिलेटेड मिसलेनियस रूल्स हैं। इसमें छोटी छोटी बातें होती हैं, तो आप इनको डिटेल से पढ़ लें। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आप एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट या डीएमसी अटैच करेंगे अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स की in online application form for induction, it must be issued by university or verified by university. जो आपका डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट या तो इशू हो या फिर वेरीफाइड हो।
CNIC and PMDC certificate attached in online application form for induction must be valid. Expired CNIC और PMDC पे आपकी induction नहीं हो सकती. An applicant will be offered induction by PGMI up to a maximum of 2 times. अगर हमारे पास कोई एक applicant है, उसको PGMI ने induction offer की भी है 2 दफा, फिर उसको स्लॉट मिला हुआ है, प्लेसमेंट ऑर्डर में भी उसका नाम है, बट लेटर ऑन उसने अराइवल दिया है, फिर रिजाइन कर दिया है, अगर उसकी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स 2 टाइम है, तो थर्ड टाइम ही विल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई फॉर द इंडक्शन प्रोसेस. बाकी आप इसको रीड कर लें, और ये थोड़ी देर में वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी. अगर इस डॉक्यूमेंट के एंड में आप देखें तो पीजीआई एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं, जिसमें एमटीआईज भी हैं और नॉन एमटीआईज भी हैं. नॉन एमटीआईज में हमारे पास सारे सीएमएचएस हैं केपी के, और आरएमआई नॉर्थ वेस्ट, श्योर मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज एंड वुमेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज. ये शेयर करते हैं स्टाइपेंड 50-50. 50% पे करते हैं केपी की गवर्नमेंट, और 50% ये पे करते हैं जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं. दिस वाज ऑल अबाउट इंडक्शन पॉलिसी. नाउ वी मूव अहेड टू the पीजीएमआई ऑफिशियल वेबसाइट. ये पीजीएमआई की ऑफिशियल वेबसाइट है. जितनी भी अनाउंसमेंट हैं, अपडेट्स हैं, न्यूज़ हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आपको पीजीएमआई की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगी. इसलिए आप सबको आज मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल द एंड ऑफ दिस सेशन यू हैव टू रेगुलरली विजिट द पीजीएमआई ऑफिशियल वेबसाइट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ डे. इसके अलावा हमारा जो है ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक कर लें ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहें. यहाँ पे अगर आप देखें तो एडमिशन जुलाई 2024 का एक बटन है. इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट भी नज़र आ रही है, और एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं. यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का बटन है. जो हमारे पास न्यू यूजर्स हैं, जो कि हमें फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, वो इसको यूज करेंगे, और जो हमारे पास पुराने लोग हैं वो डायरेक्टली लॉगिन होंगे यहाँ से. इसके अलावा हमारी की वेबसाइट पे MIS लॉगिन का स्टैंडर्ड बटन है, वो इधर से भी लॉगिन हो सकते हैं. जो हमारे न्यू यूजर्स हैं, जब वो इस बटन को क्लिक करेंगे तो दे विल बी डायरेक्टेड टू अनदर पेज, और वो ये है. अभी ये मैंने एक डेमो लिंक यूज किया है. जब 3 बजे आज पोर्टल ओपन हो जाएगा तो इसके बाद ये फंक्शनल भी हो जाएगा. इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं. अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे हमारा हेल्पलाइन नंबर मेंशन्ड है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर. इस पे आप हमसे जितनी भी इंडक्शन से रिलेटेड क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं. एंड प्लीज डू नॉट कॉल ऑन दिस नंबर. इस पे रब्ता करने का तरीका ये है कि यू लीव अ मैसेज विद डिटेल्स ऑफ ऑल योर पर्सनल डिटेल्स. आप अपनी यूजर आईडी, योर नेम, योर CNIC आप सब मेंशन करेंगे, एंड देन यू टाइप योर क्वेरी. बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, दे विल नॉट बी आंसर्ड. इसके अलावा जो हमारी डेली जूम मीटिंग्स होंगी फ्रॉम 10 to 10:30 AM, तो उसमें भी जो जिन लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम होगी, दे विल बी फैसिलिटेटेड. तो टिल द क्लोजिंग डेट हमारे पास डेली जूम मीटिंग्स होगी, विद द एक्सेप्शन ऑफ पब्लिक हॉलीडेज एंड वीकेंड्स. इट इज़ रिकमेंडेड टू अप्लाई थ्रू लैपटॉप और PC एंड अवॉइड अप्लाइंग थ्रू मोबाइल फोन. कुछ लोग मोबाइल फोन से भी अप्लाई करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज मोबाइल फोन पे आपको कुछ टैब्स विजिबल नहीं होते, एंड यू माइट मिस वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. अब हमारे पास जो लोग न्यू हैं वो तो रजिस्टर होंगे एज अ न्यू एप्लीकेंट. ठीक है, तो यहाँ पे रेड में एक लाइन आ रही है, प्रोविजन ऑफ एन इनकरेक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट. So let's move with the process of registration. You have to write your full name carefully. Type your name, क्योंकि जो आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो आगे भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जाएगा. अगर आपसे यहाँ पे गलती हो जाएगी तो आगे भी गलती हो जाएगी. और मैं एक डमी CNIC डाल रही हूँ, आप अपना ओरिजिनल CNIC डाल लें. फिर पासवर्ड आपका जो भी है डाल लें.
और उसको फिर यू री एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल लें, जो आपका, ये वही मोबाइल नंबर है जिसपे आपको जैज़ कैश का वोचर रिसीव होगा। कुछ लोग अपने बहन भाई से ये फॉर्म फिल करवाते हैं और वो लोग अपना सीएनआईसी और अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और लेटर ऑन जो है वो फिर मसला हो जाता है। इसलिए एप्लीकेंट अपना सीएनआईसी डालें और अपना ही मोबाइल नंबर डालें। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल एंटर करनी है। केयरफुली टाइप योर ईमेल, कोई आपसे मिस्टेक ना हो। ये वही ईमेल है जिसपे आपको वेरिफिकेशन का लिंक है। अगर अगर आपने गलत ईमेल एंटर कर दी तो आपकी वेरिफिकेशन का लिंक दूसरी ईमेल पे चला जाएगा, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू रिट्रीव इट। कुछ लोग जो हैं ऊपर से, अब ये नेक्स्ट उसमें आपने अपनी ईमेल दोबारा लिखनी है। कुछ लोग ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो अगर ऊपर गलती होती है तो वो नीचे भी पेस्ट हो जाती है, तो इट इज बेटर टू री राइट इट देन टू कॉपी पेस्ट इट। जब आप सारी इंफॉर्मेशन एंटर कर लें तो केयरफुली देख लें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। आपके नाम की स्पेलिंग, आपकी सीएनआईसी और मोबाइल नंबर और ईमेल सब कुछ करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ करेक्ट है, यू क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन एंड यू वेट फॉर सम टाइम। An email verification link has been sent to your email. This address. Kindly check inbox, spam, junk folder of your email address and verify the link. तो मैं अपनी ईमेल पे चली जाती हूँ। यहाँ पे पीजीएमआई की एक ईमेल आई हुई है, पीजीएमआई अकाउंट एक्टिवेशन। Thank you for registering with PGMI. Please click here to verify and activate your email. You cannot log in until your is confirmed. यहाँ पे आपने जो CNIC और पासवर्ड डाला था वो यहाँ पर आपके पास इस ईमेल में सेव है। अगर आपको भूल जाता है तो आप लेटर ऑन इस ईमेल से देख भी सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो आपकी ये वेरिफिकेशन हो जाएगी। योर ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड, प्लीज लॉग इन यूजिंग योर CNIC एंड पासवर्ड। वही CNIC जो आपने डाला था और वही पासवर्ड आपने दोबारा एंटर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेम सिटिंग में ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, यू कैन डू इट नाउ। नहीं तो आप लेटर ऑन भी डायरेक्टली लॉग इन हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक आप लोगों, ये अब हम लॉग इन हो गए हैं और यहाँ पे एक पिक्चर आपको नजर आ रही है कि यू शुड upload only the scanned copies of original documents and not the photocopies। क्योंकि देखें, अगर आप अगर कोई ब्लर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो जारी बात है हम हार्ड कॉपीज तो लेते नहीं हैं, तो वी विल बी हैविंग नो अदर ऑप्शन देन टू रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। इसलिए अगर आप अपनी शुरू से ही ख्याल रखें और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल हैं उनको अपने मोबाइल में कैम स्कैनर डाउनलोड कर लें, और कैम स्कैनर से आप अपना स्कैन निकाल के जेपीजी में आपने जो है अपने सारे इमेजेस अपलोड करने हैं। ना मोबाइल से पिक्चर लेके नहीं करने, बिकॉज अक्सर वो ब्लर हो जाती है। ओके, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप लोग रीड कर लें। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, और जो फील्ड्स एस्टेरिक रेड एस्टेरिक से मार्क होंगे वो मैंडेटरी हैं और उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपको ये बटन नजर आ रहा है, इस पे यूज करना है। यहाँ पे आपने एक चेक करना है, आई हैव रेड द एडवर्टीजमेंट एंड इंडक्शन पॉलिसी। अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यू हैव एक्चुअली रेड द एडवर्टीजमेंट एंड इंडक्शन पॉलिसी। अगर आप इसको बगैर ये किए चेक करेंगे तो इट अमाउंट्स टू फेक इन्फॉर्मेशन। लेटर ऑन फिर लोग आ जाते हैं कि जी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बट फिर आप पेनल्टी लगती है, एंड देन जारी बात है फिर दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज, सो इट्स बेटर कि आप सब कुछ पहले से ही पढ़ लें। इंडक्शन सेशन है आपका जुलाई 2024 ट्रेनिंग प्रोग्राम
आप अगर फर्स्ट फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वी हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट फेलोशिप, सेकंड फेलोशिप है, और नीचे एक थर्ड ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, वो सब स्पेशलिटी का है। जो लोग हमारे पास पार्शियल ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं, सपोज एक एप्लीकेंट है, उसने हमारे या तो प्री IMM 2 years कंप्लीट की हैं PGMI के साथ, या कहीं और अब कंप्लीट किए हैं, एंड वो आना चाहते हैं एलाइड स्पेशलिटी में, तो वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह जो लोग सपोज कहीं पे भी सब स्पेशलिटी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम PGMI को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो भी इसी को ही सिलेक्ट करेंगे। तो अभी आई विल सिलेक्ट फॉर फर्स्ट फेलोशिप, और यहाँ पे आपके पास कोटा है ओपन मेरिट, डिसेबल्ड, माइनॉरिटी, आर्मी स्पाउस, सिविल सर्विस स्पाउस, AJK एंड गिलगित बल्तिस्तान। ओपन मेरिट जो भी आप स्पेशलिटी है, आई विल गो फॉर मेडिसिन एंड अलाइड। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें आपकी टेस्ट कैटेगरी खुद ब खुद अपडेट हो गई है, बट यू नीड टू बी केयरफुल कि आपकी टेस्ट कैटेगरी शुड बी वैलिड फॉर योर पार्ट 1। ऐसा ना हो कि वो टेस्ट कैटेगरी गलत हो और लेटर ऑन फिर मसला हो। यहाँ पे आपके पार्ट 1 की स्पेशलिटीज भी मेंशन्ड हैं। यहाँ पे डेट आपने एंटर करनी है एट विच द FCPS पार्ट 1 वाज क्वालिफाइड। डेट को डालने की दो तरीके हैं, आप कैलेंडर भी यूज कर सकते हैं और आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। पेरिफेरी और हार्ड एरिया का आपने सेलेक्ट करना है, लेस देन 12 मंथ्स है। अगर आप 12 मंथ्स टू लेस देन 18 मंथ्स सेलेक्ट करेंगे तो यू हैव टू सेलेक्ट, यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट अटैच करना है। तो मैंने जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर बनाया हुआ है डेस्कटॉप पे, और उसको जो है मैंने हर फाइल को रीनेम किया हुआ है। ये सारे इमेजेस जो हैं वो JPG में हैं, आपने इन सब को जो है सेव करके एक फोल्डर बना लें वेबसाइट डेस्कटॉप पे, और हर एक को रीनेम कर लें। अब मैं यहाँ से सिंपली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लूंगी और यहाँ पे अटैच कर दूंगी। आप इंफॉर्मेशन जो आपने अभी तक दी है उसको चेक कर लें, और अगर वो ठीक है तो देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। Have you completed 1 year house job and testimonials are available? Yes. Do you have a valid PMC, PMDC certificate? Yes. Do you have a CPSP letter of congratulation for passing part 1? Yes. Do you have a valid KPK domicile as per induction policy for this session? As per induction policy का मतलब ये है कि जो मैरिड फीमेल्स हैं उनको अपने हस्बैंड का डोमिसाइल बताना है। अगर इफ यस तो यस सेलेक्ट कर लें, अगर नो तो नो सेलेक्ट कर लें। Then we have, are you applying on army spouse, civil servant, AJK, Gilgit Baltistan quota? So if I'm a KP domicile holder, I will select no, because these quotas are for non-KP domicile holders. Then you enter your PMDC expiry date. अगर मैं एक एक्सपायरी डेट इसमें डालती हूँ, सपोज मेरा PMDC जो है वो एक्सपायर्ड है, तो ये एक आपको इंफॉर्मेशन देगा कि PMDC सर्टिफिकेट इज एक्सपायर्ड एंड एज सच यू आर नॉट एलिजिबल। तो एक एक्सपायर्ड PMDC पे आपकी इंडक्शन नहीं हो सकती है। अगर आपका PMDC एक्सपायर्ड है, यू शुड इमीडिएटली अप्लाई फॉर रिन्यूअल। तो अब सिस्टम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। यू एंटर योर PMDC नंबर। फिर कुछ अटैचमेंट्स हैं, और 1 year हाउस जॉब, इसमें जो है हाउस जॉब सर्टिफिकेट की दो अटैचमेंट्स हैं। पहले वाले में 6 मंथ्स है और नेक्स्ट में भी 6 मंथ्स है। कुछ लोगों के 3 3 मंथ्स के हाउस जॉब सर्टिफिकेट होते हैं, तो वो 3 3 मंथ्स का एक ही जगह स्कैन लगा के, यानी कि वो 3+3 जब 6 महीने का हो जाएगा तो उसको आप 1 में अटैच कर लें, बाकी 3+3 को एक ही स्कैन में निकाल के 2 में अटैच कर लें। तो मैं अब अटैचमेंट स्टार्ट कर लेती हूँ। हाउस जॉब 1, क्योंकि मैंने पहले से सेव किए तो इसलिए आसानी है, इसलिए आप लोग भी इसी तरह ही कर लें। हाउस जॉब 2, PMDC and FCPS 1 congratulation letter। सारी अटैचमेंट जब आप कर लें तो एक दफ़ा से फिर ऊपर चेक कर लें आपने सब कुछ सही सिलेक्ट किया है तो, इफ यस देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। देन अभी हैव गॉट सम पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें आपने अपनी पिक्चर अटैच करनी है। प्रोफाइल इमेज शुड बी हैविंग ब्लू और वाइट बैकग्राउंड।
कुछ लोग सेल्फी लगा देते हैं, तो प्लीज अवॉइड। अब देखिए, आप ने जो उधर इंफॉर्मेशन एंटर की थी वो बाय डिफॉल्ट खुद बहुत इधर आ गई है। आपका नेम आ गया है, CNIC आ गई है, ईमेल आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। अब आप फादर्स नेम खुद एंटर कर लें, ठीक है। और जो गार्डियन, कुछ लोगों का मोबाइल नंबर है वो कभी कभी रीचेबल नहीं होता, तो आप उसमें गार्डियन का नंबर भी डाल दें, ऑप्शनल है। फोन नंबर, देन जेंडर, मेल फीमेल जो भी है सिलेक्ट कर लें। सपोज आई सिलेक्ट फीमेल, तो सिंगल के लिए अलग अटैचमेंट्स हैं और मैरिड के लिए अलग अटैचमेंट्स हैं। वी फर्स्ट गो विद द सिंगल। इसमें आप देखिए, नेशनैलिटी आपने सेलेक्ट करनी है, आप या तो पाकिस्तानी हैं या फॉरेन नेशनल हैं। फिर आपने अपना डोमिसाइल प्रोविंस सेलेक्ट करना है, खैबर पख्तूनख्वा। और फिर आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अगर मैरिड फीमेल है तो उसके लिए अटैचमेंट्स डिफरेंट हैं। उसमें उन्होंने जो है शो करना है हस्बैंड का CNIC नंबर, हस्बैंड का नेम, हस्बैंड का डोमिसाइल प्रोविंस एंड हस्बैंड डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ सिंगल, and then we move ahead. एड्रेस जो है वो, नेक्स्ट इज एड्रेस, योर प्रोविंस, योर डिस्ट्रिक्ट, योर सिटी एंड योर एड्रेस। जो भी एड्रेस है आप इसमें डाल दें डिटेल से। ये वही एड्रेस है जो आपके CNIC पे मेंशन्ड है। और अगर इन केस ऑफ मैरिड फीमेल, इट मस्ट बी द सेम एज हस्बैंड CNIC। नेक्स्ट वी हैव गॉट पोस्टल एड्रेस। कुछ लोगों का जो परमानेंट एड्रेस CNIC पे मेंशन होता है वो बहुत शॉर्ट सा होता है। अगर वो चाहते हैं कि परमानेंट एड्रेस को और डिटेल से लिख लें तो दे कैन राइट इट, अदरवाइज दे कैन सेलेक्ट इट एज सेम। इसके बाद दोबारा कुछ अटैचमेंट्स हैं। CNIC आपने फ्रंट का अटैच करना है, CNIC बैक साइड, CNIC एक्सपायरी डेट। सपोज आई एंटर 15th, मेरा CNIC इधर एक्सपायर्ड है, तो सिस्टम ने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी है कि CNIC इज एक्सपायर्ड एंड एज सच यू आर नॉट एलिजिबल। एक्सपायर्ड CNIC पे आपकी इंडक्शन नहीं हो सकती, इसलिए अगर आपका CNIC एक्सपायर्ड है इमीडिएटली अप्लाई फॉर रिन्यूअल। डोमिसाइल का नेक्स्ट अटैचमेंट जो है वो डोमिसाइल के फ्रंट साइड की है। उसके बाद वी हैव गॉट डोमिसाइल बैक साइड। अगर आप सारी अटैचमेंट्स एक दफा दोबारा चेक कर लें, सब कुछ अगर ठीक है, तो देन यू मूव अहेड टू द। यहाँ पे एक चीज मुझसे रह गई है, तो ये मैंने से अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर ली, एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जिसमें आपका जो मैट्रिक है SSC सबसे पहले वो आ गया। बोर्ड आप सेलेक्ट कर लें, पेशावर। ईयर ऑफ पासिंग वी टेक एज 2014, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स। परसेंटेज ये खुद कैलकुलेट कर लेगा, और आपने अपनी DMC अटैच करनी है। एंड यू क्लिक ऑन द ऐड क्वालिफिकेशन बटन। तो आपने जो इन्फॉर्मेशन ऊपर डाली है वो नीचे भी आ गई है, एंड इफ यू वांट टू चेंज इट, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास HSSC आ गया, जो कि FSC है या A लेवल जो भी है। बोर्ड जो है सिलेक्ट हो गया। अगर आप चेंज करना चाहते हैं यू कैन चेंज इट। ईयर भी चेंज हो गया क्योंकि 2 साल बाद होता है, अगर लेट किया है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड आप मेंशन करते हैं, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ये खुद कैलकुलेट कर लेगा, एंड यू सिलेक्ट योर FSC की DMC, एंड यू
क्लिक ऑन द ऐड क्वालिफिकेशन बटन, तो वो नीचे जो है वो ऐड ऑन हो जाएगा। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही लग रही है देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। देन वी हैव गॉट प्रोफेशनल डिटेल्स। यहाँ पे जो है आपने प्रोफेशनल एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। डिग्री आपने एमबीबीएस बीडीएस जो भी है सिलेक्ट कर लें, और ग्रेजुएटेड कहाँ के ग्रेजुएट हैं आप। एग्जाम टाइप एनुअल है या सेमेस्टर है। अगर सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टम आपसे उतनी ही सेमेस्टर की इंफॉर्मेशन मांगेगा। अगर आप एनुअल सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टम आपसे 5 ईयर एग्जाम विद 5 प्रॉफ्स, जो कि नया सिस्टम है। कुछ पुराने लोग हैं जिनका 5 ईयर एग्जाम था विद फर्स्ट प्रॉफ इन 2 पार्ट्स, ये उनके लिए है। और बाकी ऑप्शन जो हैं वो भी अवेलेबल हैं अगर बहुत पुराने लोग अप्लाई करेंगे तो। आई गो विद 5 ईयर एग्जाम विद 5 प्रॉफ्स। प्रोफेशनल लेवल सबसे पहले फर्स्ट प्रॉफ सेलेक्ट कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट जो भी है आपका। 17 मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स जितने भी हैं आपके, परसेंटेज खुद कैलकुलेट हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपने जो है अपनी अटैचमेंट करनी है, या तो ट्रांसक्रिप्ट की या डीएमसी की। इसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है, ट्रांसक्रिप्ट स्लैश डीएमसी मस्ट बी इशूड और वेरीफाइड बाई यूनिवर्सिटी। तो कुछ लोग कॉलेज की तरफ से इशू हुआ हुआ एकेडमिक सर्टिफिकेट अटैच कर लेते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं जो हूँ फर्स्ट प्रॉफ वाली डीएमसी अटैच कर लूंगी, जिसमें आपके टोटल मार्क्स मेंशन होते हैं और ऑब्टेन मार्क्स मेंशन होते हैं। यहाँ पे आपने अपनी एमबीबीएस की डिग्री अटैच करनी है। एंड एट प्रोफेशनल लेवल, अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट एंटर कर ली है, यू क्लिक ऑन दिस बटन, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे एंटर हो जाएगी। इसी तरह अब हम सेकंड प्रॉफ की तरफ जाते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद अपडेट हो गई है, अगर आपने चेंज करनी है यू कैन चेंज इट। तो यहाँ पे आपने मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। यहाँ पे सेकंड प्रॉफ की अटैचमेंट आ गई है, एंड देन यू एट क्वेश्चन लेवल। तो आप देखिए वो सेकंड प्रॉफ जो है वो नीचे एंटर हो गया है। ऊपर थर्ड प्रॉफ खुद आ गया है। यू एंटर द मार्क्स ऑफ थर्ड प्रॉफ वाले मार्क्स आ गए। अब परसेंटेज खुद कैलकुलेट होगी एंड यू चूज द फाइल ऑफ थर्ड प्रॉफ एंड यू ऐड द प्रोफेशनल लेवल रिकॉर्ड। तो वो नीचे जो लिस्ट है वो ऐड ऑन होती जा रही है। फोर्थ प्रॉफ की तरफ आ जाते हैं। ईयर जो है खुद ब खुद अपडेट हो रहा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं यू कैन चेंज इट। ये फोर्थ प्रॉफ के मार्क्स मैंने एंटर कर लिए, और फोर्थ फोर्थ प्रॉफ की ही मैंने डीएमसी अटैच कर लिया और ऐड प्रोफेशनल लेवल, तो वो नीचे एंटर हो गया। अब हम फाइनल प्रॉफ की तरफ आ गए, तो जो भी आपके मार्क्स आए हैं फाइनल प्रॉफ की डीएमसी अटैच कर दें एंड देन ऐड प्रोफेशनल लेवल। तो ये खुद बहुत नीचे जो लिस्ट है वो अपडेट हो गई है। अब आप इसको और से देख लें, अपनी डीएमसीज के सामने रख के मैच कर लें। आपने कोई गलती तो नहीं की। अगर गलती की है यू हैव एन ऑप्शन टू डिलीट एंड एडिट इट। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सिस्टम आपको एक और पूछ रहा है कि आर यू श्योर। देन अगर आप श्योर है तो यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सर्विस इंफॉर्मेशन आपने देनी है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपका जो नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, आपकी डेजिग्नेशन, आपका जॉब टाइप जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक बेसिस, सेमी सेमी ऑटोनमस, ऑटोनमस, प्राइवेट सेक्टर और एमटीआई, और अपॉइंटमेंट की डेट है, और बाकी अटैचमेंट्स हैं। हियर आई सेलेक्ट अनएम्प्लॉयड एंड आई मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। एनी प्रीवियस पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, अगर आप पीजीएमआई के साथ है या नहीं है, दोनों सूरतों में आपने अपनी प्रीवियस ट्रेनिंग को शो करना है। सपोज जो लोग सेकंड फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने अगर प्रीवियस ट्रेनिंग अगर फर्स्ट फेलोशिप की हुई है तो वो इसको सिलेक्ट कर लें, या लोग जो पार्शियल ट्रेनिंग वाले हैं वो भी इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसी तरह एमसीपीएस डिप्लोमा के लिए भी अवेलेबल है। यूनिट मेंशन कर लें, हॉस्पिटल जहाँ पे भी आप अंडर ट्रेनिंग है या ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग थे, सिटी, स्पेशलिटी, डेट, एनरोलमेंट वाली डेट है, लीविंग या कंप्लीशन डेट है,
और RTMC नंबर है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, एंड रीजन फॉर लीविंग। अगर वो आप रीजन फॉर लीविंग, अगर आपका टर्मिनेशन है तो आपसे टर्मिनेशन लेटर की अटैचमेंट मांगेगा सिस्टम। अगर रेजिग्नेशन है तो रेजिग्नेशन लेटर की अटैचमेंट मांगेगा। और अगर कंप्लीट है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। और अगर आपका एग्जिट एग्जाम पास्ड है, जो कि सेकंड फेलोशिप वाले लोग हैं, तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। और जो लोग करंट ट्रेनिंग में हैं, वो हमारे पास सिर्फ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। देन यू हैव टू सिलेक्ट कि ट्रेनिंग इज विद PGMI पेशावर और नॉट। Then, for the sake of ease, I will select no, and then I will go to the next step. आखिरी जो स्टेप है दैट इज मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट हमारे पास एक ही है, जो कि है जायज कैश। हाँ, जैस कैश की जो हैं, यू विल रिसीव वोचर नंबर ऑन द प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर व्हेन यू क्लिक ऑन द जनरेट पेमेंट वोचर एंड गो टू द नेक्स्ट बटन। ये जो आपको ग्रीन बटन नजर आ रहा है, जब आप इस क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर हमें प्रोवाइड किया हुआ है उस पे आपको एक वोचर नंबर रिसीव होगा। और थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। आपने वो नंबर अपने पास सेव करना है और किसी भी जायज कैश के रिटेलर के पास जाके तो उसको वो नंबर दिखाना है, उसको पैसे देने हैं और आपकी पेमेंट हो जाएगी। जब आप पेमेंट कर लेते हैं तो आपको एक मैसेज आता है, वो मैसेज हमें भेजने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास संभाल के रखें। जायज कैश का सिस्टम और हमारा सिस्टम जो है वो आपस में लिंक्ड है। 24 आवर्स में जो है पेमेंट स्टेटस अपडेट हो जाता है। To pay your voucher, kindly visit your nearest retailer or use Jazz Cash mobile application and pay your payment. मोबाइल ऐप भी आप यूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए। If you did not receive the voucher number on your provided mobile number at the given time, you can print the voucher details through Jazz Cash voucher details button available on the next page. Generate payment voucher and go to the next step. अब आप यहाँ पे देखें तो आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे वोचर नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें, ये रेड बटन में जायज कैश की वोचर डिटेल्स हैं। ये जो है वो आपका वोचर नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है। आप इसको, अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद है तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं अभी भी। अगर नहीं है तो आप इसको सेव एज PDF भी कर सकते हैं और इसको अपने पास PDF फाइल में सेव कर सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे अंडरटेकिंग जो है वो लास्ट स्टेप है। कुछ लोग एज्यूम करते हैं कि जैस कैश का जो नंबर है वो आ गया है एंड एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। दिस इज नॉट लाइक दिस। आपने जो है इस पेज को बहुत और से रीड करना है। नो चेंजेस शैल बी पॉसिबल आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप। और यहाँ पे एक अंडरटेकिंग है, आई solemnly declare that particulars stated above are correct to the best of my knowledge and belief, and nothing has been concealed from PGMI. Furthermore, I am physically and mentally fit for the specialty that I am opting for and not suffering from any chronic disease disability. If candidate is suffering from any chronic disease disability, it should be reported to PGMI before induction. PGMI medical board will evaluate the disease with specialty option and make a decision. दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हेयर टू प्रीव्यू योर एप्लीकेशन। यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों पे आप जाके तो अपना एप्लीकेशन जो है वो एक नज़र देख सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपने एंटर की थी वो आपके सामने है। योर आईडी, ये 4 डिजिट यूजर आईडी है, ये सब लोग अपने पास नोट कर लें। एंड जब भी आप हमसे कम्युनिकेट करें, यू हैव टू मेंशन योर 4 डिजिट यूजर आईडी, योर सेशन इज मेंशन, योर स्पेशलिटी इज मेंशनड। लेकिन अभी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि यू हैव नॉट सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज क्लिक हियर टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं इधर से भी कर सकती हूँ और मैं पुराने टेबल पे जाके उधर से भी कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव टू क्लिक ऑन दिस आई एग्री। जब आप इससे एग्री कर लें तो देन यू सबमिट योर एप्लीकेशन। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म? यस, थोड़ा सा वेट कर लें। अब आप देखें, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ से जो है आप अपने फॉर्म को जो है प्रिंट भी कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन रिव्यू भी कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस नाउ। अब
आप अपने जीमेल पे चले जाएं और वहां पे आपको एक ईमेल आई होगी, पीजीएमआई एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। Thank you for applying for FCPS training program session July 2024 with PGMI. We would like to inform you that your application for FCPS training program is under review process with our scrutiny team. Kindly note this voucher number. जो voucher number आपके मोबाइल पे आया है वो आपको ईमेल पे भी आया हुआ है, और वो ये है: Please pay the application processing fee of rupees 5,000 on this voucher number before closing date from Jazz Cash mobile app or nearest Jazz Cash retailer shop. The details of the voucher have also been sent to the mobile number provided by you. If you do not submit your payment before closing date, your application form will not be processed. अपनी पेमेंट क्लोजिंग डेट से पहले पहले कर लें, ठीक है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है: प्लीज विजिट योर डैशबोर्ड ऑफ पीजीएमआई एमआईएस सिस्टम ऑन रेगुलर बेसिस टू नो द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें ईमेल नहीं आई है और हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया। तो हमारा जो है मीन या मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज पीजीएमआई एमआईएस पोर्टल। आपने अपना डैशबोर्ड रेगुलरली देखना है। डैशबोर्ड क्या है? डैशबोर्ड जो है वो आपने जब भी फॉर्म फिल किया है, यहाँ पे डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। जो भी मैंने चीजें डाली थी वो अब सामने आ गई हैं: माय नेम, माय सेशन, फेलोशिप्स, कोटा एंड स्पेशलिटी। पेमेंट स्टेटस अभी पेंडिंग है। जब पेमेंट हो जाएगी तो उसकी 24 आवर्स बाद ये स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। अगर 24 आवर्स बाद भी ये पेंडिंग आता है तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस थ्रू हेल्पलाइन। फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया है। अगर सबमिट नहीं होगा तो यहाँ पे फॉर्म नॉट सबमिटेड वाला ऑप्शन आ रहा होगा, मतलब आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया अभी तक। ये दो बटन्स पीजीएमआई के हैं: मार्क्स वेरिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन। ये पीजीएमआई की स्क्रूटिनी टीम होती है, जब आपके मार्क्स की वेरिफिकेशन कर लेती है तो यहाँ पे पेंडिंग के बजाय वेरीफाइड लिखा आ रहा होता है। जब वेरीफाइड लिखा आ जाए तो देन यू हैव टू चेक कि कहीं पीजीएमआई की स्क्रूटिनी टीम ने आपके मार्क्स तो चेंज नहीं किए हैं। इसी तरह एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर अगर आप पूरा उतरेंगे तो यू विल बी एलिजिबल, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल। अगर यहाँ पे नॉट एलिजिबल आ रहा है तो साथ में रिमार्क्स भी मेंशन्ड होंगे, तो वो रिमार्क्स आप रीड कर लें। एंड इफ यू कैन मेक प्रोवाइड अस द डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स, देन हम उसको प्रोसेस कर लेंगे। इफ नॉट, देन you will be having a full chance to defend your case in front of the PGMI grievances committee meeting to be held on 22nd May एट पीजीएमआई, एंड उसमें आप अपना केस डिफेंड कर सकते हैं। मेंबर्स जो डिसाइड करेंगे वो फाइनल हैं। अगर पीजीएमआई की स्क्रूटिनी टीम ने आपको 60% मार्क्स दिए हैं एंड यू क्लेम कि आपके 70% मार्क्स हैं, देन यू डिफेंड योर केस इन फ्रंट ऑफ द ग्रीवेंसेस कमेटी मीटिंग। फिर जो मीटिंग के मेंबर डिसाइड करेंगे वही फाइनल होगा। तो अपने डैशबोर्ड को आपने रेगुलरली विजिट करना है। कुछ लोगों ने 2 पार्ट 1 किए हुए होते हैं, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर देयर सेकेंड पार्ट 1। तो उसका ये वाला बटन है जो ग्रीन अभी मैंने क्लिक किया, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने पहले मेडिसिन एंड अलाइड में फिल किया है, तो मैं यहाँ पे जो है अगर सर्जिकल में करना चाहती हूँ तो मैं फिर यहाँ से अपनी पार्ट 1 स्पेशलिटी जो है वो चेंज करके दोबारा से पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके और दोबारा से पैसे सबमिट कराएंगे, ठीक है, जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है। जो सेकेंड फेलोशिप वाले लोग हैं जब वो अपना फिल करेंगे तो हाँ, सेकेंड फेलोशिप में कोई कोटा नहीं है, वो ओपन मेरिट है। उसमें आपने लास्ट फेलोशिप की डिटेल्स मेंशन करनी है, जो कि जो भी है कार्डियोलॉजी है या जो है। अब यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है जिसपे आपका फर्स्ट फेलोशिप का वाइवा क्लियर हुआ था। अब वो जिसमें जाना चाह रहे हैं सेकंड फेलोशिप वाले, सपोज इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में, वो सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 3 अटैचमेंट्स हैं। यहाँ पे आपने अपना पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस इन फर्स्ट फेलोशिप और स्पेशलिटी टू बी ऑप्टेड इन CPSP रिकग्नाइज यूनिट आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल एंड अटैच। यहाँ पे आपने अपनी फर्स्ट पे जो पब्लिकेशन अटैच करनी है, चाहे वो आपकी कार्डियोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो इंटरवेंशन से रिलेटेड है। और अगर आप को देखना है कि आपका जो जर्नल है वो HEC रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं टू सी द HEC रिकग्नाइज्ड जर्नल, और यहाँ पे आप अपनी पब्लिकेशन का लिंक्स भी दे सकते हैं। एनीथिंग लेफ्ट?
सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों के कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क। हम ये स्टॉप शेयर करें, मेरा स्क्रीन शेयर। Let's start with the question answer session. One by one, I will take the questions. जो लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके। मोहम्मद रोमान, सिद्रा खान, सिद्रा तारिक, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज बताएं। प्लीज अनम्यूट योर माइक। सिद्रा खान, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। देखिए, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज हैंड रेज ना करें। मोहम्मद रोमान, सिद्रा तारिक, सफिया जलाल खान। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। सलाम। जी, मुझे दो तीन क्वेश्चन पूछने हैं। जी एक जी। ये कि मेरा जो है, मैं खुद मैरिड हूँ ना, और मेरा डोमिसाइल केपीके का है। तो मुझे भी जरूरी है कि मैं हस्बैंड का डोमिसाइल दूँ, ये मस्ट है जी कि जी, मैं आपका अपना। अपना डोमिसाइल वैलिड ही नहीं है ना। मैरिड फीमेल का अपना डोमिसाइल मैरिड वैलिड ही नहीं है। आपके हस्बैंड का डोमिसाइल कहाँ का है? नौशेरा। तो बस केपी ही हो गया ना। आपने ठीक है। अटैच करना है हस्बैंड का डोमिसाइल, ठीक है। और साथ में निकाहनामा भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, सेकंड ये है कि मैं पैथोलॉजी में अपेयर होंगी ना, तो जी। मेरे टेस्ट कैटेगरी में मुझे मेडिसिन लिखना है या पैथोलॉजी मेंशन करना है? जब आप फिल करेंगी ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो जी। पार्ट वन जब आप पैथोलॉजी में सिलेक्ट करेंगी तो आपकी टेस्ट कैटेगरी ऑटोमेटिकली मेडिसिन हो जाएगी, ठीक है। ओके। एंड जी सर, थर्ड क्वेश्चन ये है कि मैंने 2016 में क्लियर किया था अपनी ग्रेजुएशन। तो उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो है उसको फर्स्ट प्रॉफ कहते हैं। तो जी। फिर जो है ये फर्स्ट प्रॉफ में मैंने इन दोनों ईयर्स के डीएमसी देनी है, देखें, डालनी है? आप जब अभी मैंने फॉर्म फिल किया है ना, अगर आपने नहीं हम्म। देखा तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जब आप एनुअल सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास आगे दो ऑप्शंस आते हैं कि आपका फर्स्ट प्रॉफ पार्ट वन पार्ट टू में अगर हुआ है तो आपको दो अटैचमेंट्स उसकी करनी पड़ती हैं। पार्ट वन की अलग अटैचमेंट होती है, पार्ट टू की अलग अटैचमेंट होती है, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू। मोहम्मद रोमान, आप जी क्वेश्चन जी पूछ मैं सकते हैं। जी जी मैं मेरा एक क्वेश्चन है, जो मैट्रिक और इसी के जो डीवीसी है, सिर्फ जी। हम वो अपलोड कर सकते हैं या सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं मैट्रिक और सेकेंड ईयर का? दोनों दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, दिस इज ओनली फॉर मैट्रिक एंड एफएससी, ठीक है। अगर आपके पास प्रोफेशनल एग्जाम्स की डीएमसीज हैं तो वो प्रेफरेबल हैं, सर्टिफिकेट्स अटैच ना करें, सही है। ठीक है। हेलो। सफिया जी, सिद्रा तारिक। जी मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि ये आर्मी स्पाउस कोटा पे अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं डॉक्यूमेंट की? आप एक तो आपने पूरा वेबिनार अटेंड किया है? जी जी, मैंने अटेंड किया है। जी। उसमें ये है कि आपने जो है पोस्टिंग ऑर्डर अटैच करना होता है और ड्यूटी सर्टिफिकेट अटैच करना होता है। ना सही सी क्यों नाम यार। एक मिनट, ये आप जो कम मेंबर थी बस कोई तो इजाजत थी और क्या था इजाजत नहीं। मोहम्मद रोमान, आप अपना माइक म्यूट कर लें। मोहम्मद रोमान, प्लीज म्यूट योर माइक।
सिद्रा, डॉक्टर सिद्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्लीज। हाँ जी, आपने अपने हस्बैंड का पोस्टिंग ऑर्डर वो अटैच करना होता है और ड्यूटी सर्टिफिकेट अटैच करना होता है, और ड्यूटी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी मोर देन 30 डेज ओल्ड। आप पॉलिसी रीड कर लें, ठीक है? आर्मी स्पाउस कोटा की जो पॉलिसी है ना, उसको आप रीड कर लें। इंडक्शन पॉलिसी थोड़ी देर में वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। ओके, और इनकी मेरिट किस तरीके से डिसाइड होती है जो कोटा जी सीट पे अप्लाई करते हैं? जी जी, बिल्कुल, आप इंडक्शन पॉलिसी पढ़ लें, उसमें सब कुछ मेंशन्ड है। थैंक यू। मोहम्मद उमैर, रिजा तारिक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी जी, पूछें। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं केपी डोमिसाइल होल्डर हूँ, तो मैं आर्मी स्पाउस पे अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकती। No, KP domicile holders cannot apply on Army spouse quota. Army spouse quota is only for non-KP domicile holder. आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? मैरिड हूँ मैम। तो आपके हस्बैंड का डोमिसाइल कहाँ का है? केपी का ही है। नो, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपके हस्बैंड का डोमिसाइल पंजाब का होता तो देन यू वर एलिजिबल। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, मोहम्मद उमैर, क्वेश्चन पूछें। मैम जी मैम, ये जो एमफिल नॉट एलिजिबल फिजियोलॉजी या बेसिक साइंसेस फॉर के आर्मी स्पाउस। कैंडिडेट हैं, जी जी। वो नॉट एलिजिबल, आई एम नॉट एलिजिबल, वी स्टार्ट डोमिसाइल केपी। डॉक्टर रिजा, प्लीज म्यूट योर माइक। मैम ये एक्सक्यूज मी मैम, जी जी, पूछें, आप पूछें, आप एमफिल का कुछ पूछ रहे थे ना? एमफिल जो बेसिक साइंसेस के कैंडिडेट्स होंगे वो एफसीपीएस पार्ट फर्स्ट का कांग्रेचुलेशन लेटर जो है, या वो उसकी जगह क्या अपलोड करेंगे? आप कोई लोगों और को ऑप्शन तो एग्जेम्पशन नहीं? लेटर मिलता है ना, सीपीएसपी की तरफ से एग्जेम्पशन लेटर मिलता है। जो लोग एमफिल ठीक है करते मैम, हैं बायोकेम में और एनाटमी में और बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं, पैथो में भी होता है, तो उनको एग्जेम्पशन लेटर देती है सीपीएसपी। तो वो ठीक है आपने मैम, सीपीएसपी से राब्ता करना है इसके लिए, ठीक है? ठीक है मैम। और प्रीवियस जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग है उसमें एमफिल से रिलेटेड कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा था ना एप्लीकेशन में, तो अच्छा, उसमें कोई ठीक है। इसकी स्लॉट वगैरह कोई होगी? वो उसका क्या ट्रेनिंग था? तो नहीं है ना, दैट इज नॉट ट्रेनिंग। जी वो एक अलग से मैम, डिग्री उसकी है। सर्टिफिकेट मिलती है ना? जी, देखिए, जब ट्रेनिंग आप, सर्टिफिकेट फॉर। बिल्कुल आपकी अच्छा, बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन वो सर्टिफिकेट आप सीपीएसपी में जमा कराएंगे। जब सीपीएसपी आपको एग्जामिशन लेटर दे देगी तो फिर आपको प्रीवियस शो करने की जरूरत ही नहीं है फिर। बात तो एक ही है ना, या तो ठीक है आप मैम, एग्जामिशन उसमें लेटर मतलब हम लगा लें। ऐड हाँ, ना करें फिर। तो हाँ, हमारा काम एग्जामिशन लेटर से है, जी और बाकी आपके सर्टिफिकेट्स तो बिल्कुल वैलिड होंगे, आप ठीक है, सीपीएसपी में वो जमा कराएं, ठीक है? अली रजा। ओके मैम, थैंक अली रजा जी, वालेकुम सलाम। थैंक्स मैम फॉर सच अ गुड वेबिनार। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने जॉब की बात की कि 3 महीनों वाला और 6 महीनों वाला, जी जी तो हमारा तो 3 महीनों वाला है, लेकिन हमने इसको 6 महीने वाला खुद बनाया है हॉस्पिटल में। इसको हम सीनियर रोटेशन के सर्टिफिकेट कहते थे और जूनियर रोटेशन की। तो फिर ठीक है। वो ठीक होगा, मतलब 6 महीनों का जो हमने खुद बनाया है हॉस्पिटल की तरफ से कि जी सीनियर और जूनियर वो एक एक अपलोड करें, वो ऑटोमेटिकली 6 महीने का हो जाएगा, तो ठीक होगा? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट इज करेक्ट। सीनियर वाला आप एक अटैचमेंट में कर लें और जूनियर 6 महीने वाला एक दूसरे अटैचमेंट में कर लें। जी जी जी, ओके, थैंक यू मैम वेरी ओके। मच। अस्सलाम। असफंदियार अली। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, जी पूछें। जी मैम, मैंने फेलोशिप सेकंड फेलोशिप के बारे में एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी सबसे पहले तो ये था कि जब मैंने इंडक्शन किया था एट द टाइम पीजीएमआई के थ्रू मैंने सिलेक्शन की हुई थी एट द टाइम एलआरएच कार्डियोलॉजी में। 1 साल जी मैंने कंप्लीट किया था एंड देन मैंने एनआरएच के थ्रू यहाँ से मैंने शिफ्ट किया था आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। मैं वहाँ चला गया था। वहाँ ठीक पे है। मैंने अब उन लोगों का वो होता है कि वो 3 साल आपने वहाँ पे पूरे करने होते हैं। तो 1 साल का एक्सपीरियंस मेरे यहाँ पेशावर का था और 2 साल मेरे वहाँ पे जब कंप्लीट हुए तो फिर मैंने एग्जाम के लिए अप्लाई किया। ठीक है। सीपीएसपी वाले ने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने एग्जाम दे दिया। तो वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग जारी थी, लास्ट ईयर मेरा वहाँ पे चल रहा था। ठीक है। अब उन लोग अब एग्जाम मेरा क्लियर हो गया हम दिसंबर में, और
तब भी मेरा लास्ट मंथ था वहाँ पे उन लोगों के साथ। जब ठीक है, पूरा हो गया मेरा वहाँ पे टेन्योर, तो उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया ठीक है, वहाँ का, जो कि 2020 से लेकर 2022 तक, सॉरी 21 से लेकर 23 तक था। ठीक है। although मेरा एग्जाम दिसंबर में क्लियर हुआ था, और ये दिसंबर 31 दिसंबर तक था। 1 साल का मेरा पिशावर का था और 3 साल का वहाँ, जो तकरीबन मेरे 4 साल लगे थे। अब यहाँ पे जब मैंने अपलोड करना है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो मैं दोनों अपलोड कर दूं या फिर वही जो आहा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वाला है वही अपलोड कर दूं? देखिए, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट अटैचमेंट है ना, आप इंटरनेशनल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ना। जी 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 देखिए, आपके लिए जी जी इम्पोर्टेंट अटैचमेंट ये है कि आप अपनी जो आगा खान वाला यानी कि जी आखिरी मैम। 3 साल वाला है वो अटैच कर लें। ठीक है। और जो सीपीएसपी की तरफ से कंग्रेचुलेशन वाली ईमेल आती है या इलेक्शन लेटर आता है वो अटैच कर लें। ठीक है। जी मैम। समझ आ गई आपको मेरी बात? जी जी जी, वो मेरे पास है, इलेक्शन लेटर भी है और वो भी है। जी जी हाँ, बिल्कुल। तो जब आप अटैच करेंगे ना प्रीवियस पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में, आप अपना जी, समझ आ तो गई। पीजीएमआई के थैंक साथ यू तो मैम, नहीं होगी। थैंक यू तो सो मच। पीजीएमआई के साथ नहीं होगी, और बस आप आगा खान का सर्टिफिकेट अटैच कर लेंगे और अपना कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर अटैच कर लेंगे। ठीक है। जी जी। ओके। नेक्स्ट है उसमें जी सिर्फ एक मानसा। क्वेरी है मेरी, मैम उसमें एक क्वेरी ये है ना कि जी वो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, तो मेरा एग्जाम 1 दिसंबर तक रिजल्ट आ गया था, तो जी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना, क्योंकि मैंने 1 साल पेशावर में गुजारा था, तो इसी वजह से वो नहीं नहीं काउंट नहीं, हुआ था आपका मेरा जो रिजल्ट है ना एग्जाम के लिए, वो उन्होंने इसलिए अनाउंस मुझे हो वो जाना किया था, चाहिए है। अलाउ किया था। हाँ, आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाना चाहिए है बिफोर क्लोजिंग डेट। अब क्लोजिंग आई नहीं है ना, 13 मई को क्लोजिंग है। तो इससे पहले पहले आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए, जो कि अनाउंस हो चुका है। तो आप तो एलिजिबल ही हो गए। जी 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 मैम, रिजल्ट में तो कोई ठीक है ना। मसला नहीं है, उन्होंने रिजल्ट भी इशू कर ओके। दिया मेरा। जी जी, ओके। इलेक्शन लेटर सब कुछ है मेरे पास। हाँ। ठीक है मैम, अब्बास थैंक यू, खान। ओके जी, थैंक यू ओके। सो मच। ये अलीशान, आलीशान हफीज, अपना माइक अनम्यूट कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैम मेरे दो क्वेश्चन है। मेरे एक क्वेश्चन ये कि मैंने 4 इयर्स बीडीएस किया ना। जी। तो हमारा सेशन जो था वो एक्चुअली 2017 से 2021 तक होना था ना। ठीक है। लेकिन कोविड की वजह से हमारा जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था वो 2022 में हो गया था, और हमारा रिजल्ट भी 2022 में ही आ गया था। ओके। तो मेरे बीडीएस का जो पासिंग ईयर है वो 2022 होगा या 21 होगा? 22 होगा। ओके, थैंक यू मैम। वो आप वहां और पे जब फिल करेंगे ना, फाइनल प्रॉफ जब एंटर करेंगे, तो उसमें जी आपके जी, पास ऑप्शन होगा कि आप ईयर Mana चेंज sama कर mic सकेंगे। sejo. वहां ठीक है, पे तो थैंक यू। 21 आएगा ना, लेकिन आप उसको 22 Dulu सिलेक्ट mo कर igande सकेंगे। bade. ठीक है। ओके, थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि हमारा जो जी। हाउस जॉब सर्टिफिकेट है वो हमें सिर्फ जो इंस्टीट्यूट ने 1 ईयर का ही दिया है ना, एक ही सर्टिफिकेट है हमारे पास, वो डिवाइडेड ओके। नहीं है। तो ठीक हम है। वो एक ही अपलोड कर लें बस? जी, बिल्कुल, आप एक ही सर्टिफिकेट दोनों 12 जगह पे मंथ्स का अटैच करेंगे। दोनों जगहों पे करेंगे? हाँ जी जी, दोनों जगह, उसके बगैर फॉर्म ठीक आके जाएगा नहीं ना। तो ठीक आपने एक पीडीएफ दोनों जगहों पे अटैच करना है। है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जमशेद, आपका कोई क्वेश्चन है? जमशेद अहमद, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। Sama mic unmute. अब्बास खान। जी जी मैडम। हाँ जी, पूछिए क्वेश्चन। मैडम मुझे ये पूछना था कि जो पिक्चर्स सीनाईसी पिक्चर और ये जो बाकी हमारी पिक्चर्स है, ये अटेस्टेड होगी कि नहीं, इसकी अटेस्टेशन जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर करवाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसी तरह ही एक्सेप्टेबल है, लेकिन इट शुड बी हैविंग अ ब्लू और वाइट बैकग्राउंड। और मैम ये डोमिसाइल और ये सर्टिफिकेट, इसकी भी अटेस्टेशन जरूरी नहीं है? देखिए, आप जब भी किसी जगह पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को तो आप अटेस्ट नहीं कर सकते ना। ओरिजिनल जी डॉक्यूमेंट पे मैम। आप कुछ भी नहीं लिख सकते। तो जब आप कैम स्कैनर से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे तो हाउ कैन यू अटेस्ट इट? हमेशा फोटोकॉपीज की अटेस्टेशन होती है। तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया था कि फोटोकॉपीज के आपने स्कैन नहीं अटैच करना। ओके मैम, थैंक यू। जमशेद अहमद, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी, पूछिए। मैडम मैडम मेरा एक सवाल ये था कि पिछले 8 मंथ से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। जी। तो
मैं मैंने सुना आपसे कि इसकी कोई वेटेज पीजीएमआई में नहीं होती। इस हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं डॉक्टर जमशेद? जी जी, आप प्रोविंशियल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक ऑर्गेनाइजेशन है एचएसपी के साथ, आखान हेल्थ सर्विस के साथ मिलकर। नहीं नहीं, देखिए आपको मैंने शुरू में बता दिया है कि जो एक्सक्लूसिव सर्वेंट्स हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, तो उनको ही मार्क्स दिए जाएंगे, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले इंस्टीट्यूट्स में हैं उनको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अच्छा अच्छा, जी, ये आप थैंक यू पॉलिसी में मैडम। दोबारा भी रीड कर लें, आपको दोबारा भी समझ आ जाएगी, आप उसको अच्छी तरह रीड कर लें पॉलिसी को, ठीक है? ठीक है, थैंक यू मैडम। एजाज अहमद। अलैक्म। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। जी जी, पूछें। अच्छा मैम, एक तो ये कि हमारा जो हाउस जॉब का सर्टिफिकेट है वो पूरे 1 साल का भी है और 6-6 महीने का अलग अलग भी है, मेडिसन एलाइड और सर्जरी एलाइड का। जी जी, तो हमने वो सेपरेट सेपरेट वो 6-6 महीने वाला हमने अपलोड करना है, ये पूरे 1 साल वाला हम अपलोड कर सकते हैं? दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अगर आप 6 महीने वाला करते हैं वो भी एक्सेप्टेबल है, एक एक वाला करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि मैडम, ये मैट्रिक और एफएससी की हमने डीएमसीज अपलोड करनी है या उसकी सर्टिफिकेट हम अपलोड कर सकते हैं? जो भी आपके पास अवेलेबल है दोनों एक्सेप्टेबल है, मैट्रिक और एफएससी वाला, लेकिन जो एमबीबीएस वाला है ना वो आपने डीएमसी अटैच करनी है, ठीक है? इशूड बाय और वो यूनिवर्सिटी। अ- अच्छा, और वो डीएमसी जो हमारी एमबीबीएस की है वो हर एक प्रूफ की, वो मैडम हमने वो तो वेरीफाइड नहीं है, बल्कि केएमयू की तरफ से जो हमें मिले बस वही वो करने हैं। हाँ हाँ, वो तो केएमयू ने इशू कर दिया ना। देखिए मैंने कहा था या तो आपकी डीएमसी इशू हो यूनिवर्सिटी की तरफ से, या कुछ लोग जो होते हैं वो फिर वेरीफाई भी करवाते हैं लेटर ऑन, या वेरीफाइड हो। ओके, थैंक यू मैम। और साथ में मैं अभी रिसेंटली अभी करंटली मैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस मैं भी अभी ये वो मुझे न दे, तो वो मतलब मैं उधर मेंशन कर लूँ कि मैं काम कर रहा हूँ या उसकी कोई जरूरत नहीं है? नहीं तो अगर वो नहीं दे रहे तो जारी बात है, आप ये पेरिफेरी वाले मार्क्स की बात कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो आप पहले ये देख लेना कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगर एम्प्लॉय हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो जारी बात है, यू कैन नॉट अप्लाई एंड देन यू सिलेक्ट एज नो। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। ओके, ओके। थैंक यू मैम। शबाना गुल। शबाना गुल। जहरा वजीर। शकील खान। वालेकुम सलाम। जी जी। हेलो मैम, मैंने ये पूछना था कि मैंने अपना जो पार्ट 1 दिया था ना, उसमें जो मैंने जीमेल यूज की थी वो मेरी सिस्टर की थी ना, तो अब मैं अपनी यूज कर सकती हूँ, मतलब चेंज कर सकती हूँ अभी इंडक्शन में अप्लाई करने के आपने पहले तो कभी हमारे साथ रजिस्ट्रेशन नहीं की है? लिए? नहीं, कभी नहीं की, बस सिर्फ पार्ट 1 में यूज की थी अपनी सिस्टर की। नहीं नहीं, बस आप अपनी ही चीजें यूज करें, ठीक है? अपनी सिस्टर की लेकिन ईमेल मसला और मैं एक सीएनआईसी और जो भी है ना कह वो अपनी यूज करना आपने। मेरी जो जीमेल है ना, उस पर मेरी सिस्टर ने अप्लाई किया था पार्ट 1 के लिए, तो उससे तो कोई मसला नहीं होगा? नहीं नहीं, आप लोग ये काम क्यों करते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती। आप लोगों के पास कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है ना जीमेल्स की? तो आप अपने लिए नया अकाउंट बना लें शुरू से, या फिर आप अपनी बहन को कह दें कि वो अपने लिए नया अकाउंट बना लें और सेपरेटली यूज कर लें। तो अब मैं यूज कर सकती हूँ इंडक्शन में हाँ अपने जी, कर जीमेल को? सकती है, बिल्कुल कर सकती हैं, यस। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। मुझे ये पूछना था कि मेरा ना लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है 29/6 को, 29 जून को। ओके। तो मैं इलेक्शन के लिए अप्लाई कर दूं या रिन्यू करवाऊं उसको? नहीं नहीं, वो तो क्लोजिंग से पहले, क्लोजिंग के बाद एक्सपायर होना है ना, तो जी वो तो जी। वैसे ही एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन ऑन द सेफ साइड आप फिर भी रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर लें, सही है? लेकिन आप जब ये अटैच करेंगे तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल। एक्सेप्ट। और मुझे ये पूछना था कि मैंने लास्ट इंडक्शन में भी अप्लाई किया था, तो मैं इस इंडक्शन के लिए अकाउंट कैसे बनाऊंगी स्टार्टिंग से? डायरेक्टली लॉग इन होंगी। जो हमारा जी वेबसाइट का पेज है ना, वो पीएमआई वेबसाइट पे जब आप जाएंगी तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड MIS लॉगिन का बटन है, उससे आप जी जी। डायरेक्टली लॉग इन हो जाएंगी। आपने रजिस्टर एज ए न्यू एप्लीकेंट नहीं करना। वही पुराना उसी पे। CNI, जी जी, पुराना CNIC और पासवर्ड एंटर कर देंगी
जी और जी, आप लॉगिन हो जाएंगी, ठीक है। वहां पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड है, तो फिर मैं क्या हाँ करूँ? जी जी बिल्कुल, आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन सारी सेव है हमारे पास, लास्ट इंडक्शन तो वाली, फिर ठीक है। तो यू जस्ट फिर अप्लाई एंड सबमिट द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी। अच्छा, वहां पे ऑप्शन आ रहा होगा? जी जी, आप लॉगिन होके तो देख लेना, फिर आपको सारी समझ आ जाएगी। अगर कोई भी चलो मसला मैं हो, यू कैन दोबारा एक कॉन्टेक्ट, दफा चेक करती हूँ, फिर बताती हूँ। हाँ यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन हेल्पलाइन लेटर ऑन। ओके ओके, थैंक यू। इरम शाह, इरम शाह, आमना खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो सलाम। अस्सलाम। असल में मैं आर्मी स्पाउस कोटा पे ज्वाइन कर रही हूँ मैडम। तो मैं डाउ मेडिकल कॉलेज कराची की ग्रेजुएट हूँ। जी हमारे जी वहाँ ये होता था कि शुरू के फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में हमारा सेमेस्टर सिस्टम था, तो 4 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट्स थी। और उसके बाद प्रोफेशनल सिस्टम हो गया था थर्ड फोर्थ एंड फाइनल ईयर। तो मेरे पास जी जी। टोटल 7 ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। तो वो मैं मार्क्स कैसे अपलोड करूँ, क्योंकि 7 ट्रांसक्रिप्ट्स का कोई ऑप्शन नहीं है। आप फिर सेमेस्टर ही सिलेक्ट कर लेंगी, और सारी अटैचमेंट्स आप फिर सेमेस्टर की ही कर लेंगी, क्योंकि हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम है नहीं कि हम एनुअल और सेमेस्टर दोनों को एंटरटेन कर लें। तो अगर आपके पास 7 ट्रांसक्रिप्ट्स हैं तो आप सेमेस्टर सेलेक्ट करके 7 में सारे ही अटैच कर देंगे। चल ठीक है, थैंक यू। जी हेलो। जी जी। जी मैम, मैंने जो है ना 6 मंथ ट्रेनिंग की हुई है यहाँ पर बलूचिस्तान में। लेकिन मैं जो हूँ खैबर पख्तूनख्वा का मैं डोमिसाइल होल्डर हूँ ना। तो जी अभी मैं 6 मंथ के बाद वहाँ का पीजीएमआई टेस्ट दे सकती हूँ, आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ केपीके में? आप का केपी डोमिसाइल होल्डर हैं तो यस यू कैन अप्लाई। अच्छा, मैं वहाँ, लेकिन मेरा ये 6 मंथ ट्रेनिंग काउंट होगा यहाँ से? देखिए वो फिर सीपीएसपी के साथ आपका वो है ना, सीपीएसपी चेंज ऑफ इंस्टीट्यूट पे अपनी पेनल्टी लगाती है। तो वो अगर आप हमारे पास आ भी जाएंगी तो लेटर ऑन जब आप चेंज ऑफ इंस्टीट्यूट या आरटीएमसी के लिए अप्लाई करेंगी तो वो एक्सेप्ट तो हो जाएगी, पुरानी ट्रेनिंग भी काउंट हो जाएगी, लेकिन सीपीएसपी फिर पेनल्टी लगाती है। आप सीपीएसपी की वेबसाइट पे जाके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लें। अच्छा। और मैडम, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पे 6 मंथ एडहॉक की जॉब की हुई है ना, जी तो इसकी मुझे पेरिफेरल मार्क्स मिलेंगे? नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों को पेरिफेरी के मार्क्स नहीं मिलते, और बलूचिस्तान वालों को तो नहीं मिलते, ये तो सिर्फ केपी में जो गार्ड एरियाज हैं उनके लिए है, ठीक है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, जी जी पूछिए। मैडम मेरा एक सवाल ये था कि जो हम प्राइवेट में जॉब करते हैं अब ना, तो दूसरे वाले पहले वाले सेक्शन में आपने तो बताया कि उसके मार्क्स के लिए ट्रेनिंग करनी है, लेकिन जब हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हो या वो अभी उस मुश्किल हो, टाइम कम हो, तो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में हम अनएम्प्लॉयड लिखेंगे या एम्प्लॉयड? आप उसमें अगर देखें, आप अभी कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्शन में, वो मरदान में, प्राइवेट तो हॉस्पिटल में। सर्टिफिकेट लेने में तो इतना टाइम नहीं लगता, यू जस्ट हैव टू अटैच कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और थोड़ी सी डिटेल्स डालनी होती है। अभी तो टाइम है ना, देखें आज पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपके पास 13 मई तक टाइम है। तो ठीक है, और वो इस महीने से छोड़ सकते हैं ना 10th के लिए, तो फिर भी होगा। नहीं नहीं, आप अभी से अभी अपनी जॉब क्यों छोड़ रहे हैं? अभी तो आपको पता नहीं है कि आपकी इंडक्शन होती है या नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा हेक्ट है इसके। मैं इस तरफ ये पूछ रहा था कि इसका कोई फायदा है हमें फिर, या एक्सपीरियंस फिर अगर हम वो कहीं और जमा करेंगे तो ये पीजीएमआई की साइड से तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना कि यहाँ पर हमने अनएम्प्लॉयड लिखी थी और हम पास में जी एम्प्लॉयड जी थे। बिल्कुल बिल्कुल, लेटर ऑन मसला होता है। आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर शो करेंगे, कोई चीज जो है आपने कंसील नहीं करनी। तो ठीक है, ठीक आपने है। इट्स बेटर कि जितनी इंफॉर्मेशन है आप बिल्कुल उसको सच सच हमें बताएं, ठीक है। ठीक है, और फिर मैडम एक और, ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट है ना, ये हमने कॉलेज में दी थी, उसमें ओके न्यू वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो अप्लाई करना जरूरी है या वो चलेगा यूनिवर्सिटी आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर? ट्रांसक्रिप्ट कॉलेज की तरफ से अगर इशू है ना, तो आप यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। आप कौन सा कॉलेज कौन सा है आपका? बच्चा खान मेडिकल कॉलेज। हाँ, तो आप केएमयू जाके उसको वेरीफाई करवा सकते हैं, या फिर केएमयू से अपनी डीएमसीज निकलवा सकते हैं। आपको केएमयू ने डीएमसी नहीं दी? और इसमें वो थर्ड प्रूफ वाला कहीं मिसिंग है, ओरिजिनल। इमीडिएटली अप्लाई कर लें, ठीक है। ठीक है, और फिर मैडम ये दो जो हमारे पास जो स्कैन कॉपी होते हैं ना, वो हमारे पास जी। स्कैन है, क्लियरली विजिबल है, तो इसमें वो हम्म। जरूरी फिर कि
क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि इसमें ये डिम्सी ओरिजिनल है या कॉपी है, लेकिन वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, तो वो चलेगा या हमें ओरिजिनल देखिए, ढूंढ जो के वापस? ओरिजिनल होती है वो कलर्ड होती है ना, मोस्टली तो यही होता है ना। जब आप जी जी उसका स्कैन लेंगे तो जारी बात है, अगर वो ओरिजिनल है तो उसमें कलर नजर आ रहा होगा और वो क्लियर होगी, तो वो एक्सेप्टेबल है बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा ही कि वो जो पेमेंट का ऑप्शन है ना, अगर हमारे पास अपना जिस कैश नहीं हो और उसमें हमें ये टेलनार वगैरह नंबर दे दिया है ना, और फिर किसी दूसरे फ्रेंड के जैश अकाउंट से वो पेमेंट कर देंगे तो वो चलेगा? हाँ बिल्कुल, मोबाइल नंबर जो आप हमें देंगे ना, चाहे वो जी जी टेलीनॉर का है चाहे यूफोन का है, उस पे आपको जायज कैश का वो आ जाएगा, वोचर नंबर, ठीक है। फिर आप जी अपने मोबाइल में भी जायज कैश की एप्लीकेशन डाउनलोड करके उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड के मोबाइल में भी डाउनलोड करके उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, और जायज कैश की रिटेलर के पास भी जाके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, मतलब ये कि अगर जैस कैश हम टेलनार मोबाइल पर डाउनलोड करेंगे उस पर भी डाउनलोड हो सकता है ना, तो हाँ इससे हाँ भी जी, पेमेंट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हो सकता है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, जी जी पूछें। मैम पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ कंसाइज और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपने एक्सप्लेन जी किया है सब कुछ। मैं सेकंड फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ स्पाइन सर्जरी में। जी जी जी, पूछें आप क्वेश्चन। ऑर्थोपेडिक की उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में स्पाइन की रोटेशन थी कोई 8 मंथ्स की, तो वो एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है मतलब फर्स्ट फेलोशिप में जो हमने किया है? देखिए, स्पाइन सर्जरी का कुछ इशू है। बिल्कुल सीपीएसपी ने न्यूरोस्पाइन ऑर्थोस्पाइन जो है वो रिकग्नाइज कर लिया है, लेकिन अभी भी सीपीएसपी की फैकल्टी जो है वो इस पे कुछ फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंची है। तो जो स्पाइन के लिए आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो है एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इट इज सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन बाय सीपीएसपी फैकल्टी। तो अच्छा जी। आपका जो क्वेश्चन है कि आप पिछली वाली जो ट्रेनिंग है वो काउंट होगी या नहीं होगी, वो तो बात की बात है। पहले इंडक्शन हो जाए तो भी हम कुछ बता सकते हैं ना कि आगे क्या होगा। अच्छा, फिलहाल अभी फाइनल भी नहीं हुआ? यू कैन अप्लाई, लेकिन अच्छा इंडक्शन इज नॉट कंफर्म्ड, क्योंकि हम लोग, जारी बात है, पोर्टल तो ओपन रखना ही है, लोगों को रोक नहीं सकते अप्लाई करने से, लेकिन इंडक्शन का इट इज नॉट फाइनल येट। अच्छा जी। और एक और क्वेश्चन, फर्ज करें मतलब ये मसला तो केपी में चल रहा है ज्यादा, मेरे ख्याल में लाहौर में एक सेशन हो भी गया है स्पाइन हाँ जी, एफसीपीएस का। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही तो है। अगर हम वहां से एनओसी वगैरह कोई ले आए तो पीजीएमआई एक्सेप्ट करेगी या स्टाइपेंड देगी फिर? हाँ, आप एनओसी सबमिट करा दें, तो जी लेटर ऑन जो हमारी इंडक्शन कमेटी है, सेंट्रल इंडक्शन कमेटी, वो जिस तरह डिसाइड करेगी उसी तरह ही आगे प्रोसीड किया जाएगा। यू कैन सबमिट एनओसी। चलें जी, थैंक यू सो मच। सो आई थिंक क्वेश्चंस तो बाकी लोगों के भी हैं काफ़ी, बट आई कैन नॉट एंटरटेन ऑल दीज क्वेश्चंस इन अ सिंगल सेशन। तो आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। आपकी जितनी क्वेरीज हैं वो आप हमसे हेल्पलाइन पे पूछ सकते हैं। कल से जो है हमारे पास डेली जूम मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगे, सुबह 10 से 10:30 बजे तक। आप उसमें भी हमसे कोई भी मसला हो पूछ सकते हैं। आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड लक, एंड थैंक यू एंड गुड बाय।